So hello everyone, welcome to Eye Contact Lat Preparation. This is Ayush and you're watching Eye Contact Lat. So students, finally we have reached the last 10 days before our CLAT 2026 examination, and I know that this is the point of time where you are most confused, a little bit stressed as well, and you are just unsure about what to study each day, right? So this video is made for that purpose only, to give you a proper roadmap for these last 10 days, to tell you what exactly you have to study in each section, how many mocks you should be attempting, what should be your approach in attempting mocks, or what should be your approach in making your revision. So keeping everything in mind, this video is made for that purpose only, to give you tips how you can push your score in the last 10 days. And you know, this video is going to make a very significant impact. You can trust me on this. Just make sure to stay tuned till very end and be with me here physically, mentally as well as psychologically, because just yesterday only I made a video. I will put the link in the description as well. In that video we tried to predict the CLAT 2026 examination, like what questions can be asked or what passages can be asked in each section, in GK current affairs as well as in legal, as well as in English, in quants. So you do watch that video as well, because we, section wise section made breakdown of all the last 5-year PYQs from 2021 to 2025, and based on that section wise breakdown of last 5-year PYQs, we tried to predict this year's paper as well, right? So we need to focus on certain topics. I will be telling you what topics you need to study in these last 10 days, what topics need polishing, and with this, let's start with our video. So students, today the video is targeted upon CLAT 2026 last 10 days strategy and a pattern based approach derived from CLAT 21 to 2025 analysis, right? So this strategy, student, it is based upon year wise dominant areas, in which particular year and in which section which area was most dominant, right? If we talk about CLAT 2021, so in GK section we realized that the more inclination was towards geopolitical and neighboring areas, right? So every year we will just look upon the year wise dominant areas, the recurring passage structure, the consistent question behaviors, and verified PYQ trends from 21 to 25. Our objective it is to focus only on components that CLAT repeats, okay? And that to get to those components we need to thoroughly study each year question paper. So we have already done that in our previous video. You can just check out that video. I will put the link in the description. Today I'm just going to tell you the topics which are most important and which you must cover in these last 10 days, right? So let's first talk about the most important section. Important in the sense because there is the most confusion in this section as well. सबसे ज़्यादा confusion भी इसी section में होता है, सबसे ज़्यादा unsure भी आप इसी में रहते हो कि यार मैंने इतना सब पढ़ लिया है पर यार कहीं वहां से ना आ जाए जो मैंने थोड़ा सा मिस आउट करा है, राइट? सो वो चीज की पॉसिबिलिटी आपके साथ कम हो, उसके लिए मैंने ना एक सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन करा हुआ है यहाँ पे, और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ ये मैं आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ. यू कैन चेक माई प्रीवियस वीडियो वेयर इन we discussed year by year and then we reached to the conclusion that yes, these can be the important topics for this year's paper, right? So we'll just be discussing the topics. So across all years CLAT selects one passage from each bucket. अब आप अगर previous years की भी trend देखोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो passages आते हैं उसकी थीम क्या रहती है. तो जियोपॉलिटिक्स, राइट? देन ग्लोबल एनवायरमेंट समिट, पेरिस क्लाइमेट डील, COP20, जितनी भी क्लाइमेट डील्स के अराउंड एनवायरमेंटल जो समिट्स होती है, राइट? देन मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिफ्ट, चंद्रयान का क्वेश्चन आता है, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ अराउंड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है? देन सिग्निफिकेंट इंडियन पॉलिसी, लीगल डेवलपमेंट, ठीक है? अब आप इसमें आप देख सकते हो लास्ट ईयर DPDA का भी क्वेश्चन आया था, इस साल वन नेशन वन इलेक्शन की काफी पॉसिबिलिटी है आने की. देन सोशल टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, देन ग्लोबल इकोनॉमिक डिसरप्शन, देन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स एंड इंडियाज ग्लोबल डिजिटल इनिशिएटिव्स, ठीक है? अब आप अगर ये पूछो कि सर आपने यही क्यों मेंशन किया, इसके अपार्ट आपने कोई जॉनरा क्यों नहीं मेंशन किया, तो उसके लिए मैं फिर वही बात कहूंगा, डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो विच आई पोस्टेड यस्टरडे. उसमें हमने बहुत डिटेल में CLAT 21 से लेकर के 25 तक हमने पूरी थीम्स देखी थी जीके में कि क्या जीके करंट अफेयर्स पे किस थीम पे से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं और इस साल आने की कहां से पॉसिबिलिटी. तो एक बकेट होती है ना स्टूडेंट्स,
जैसे कि जियो पॉलिटिक्स, तो अब जियो पॉलिटिक्स के अराउंड अगर आप 21 का देखो तो इंडिया चाइना LAC पे जब इशू हुआ था उस पे क्वेश्चन आया था। इस साल फिर से उस पे इंगेजमेंट हो रहा है, तो फिर से इस साल पॉसिबिलिटी आने की। और अभी आपने रिसेंट में सुना होगा, आज की मैं आपको बात बता रहा हूं कि चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को लेकर के एक मतलब गलत कमेंट किया है कि अरुणाचल प्रदेश को हम इंडिया की टेरिटरी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो इलीगली इंडिया ने ले रखी है, वो हमारी जगह, और उनको उन्होंने अपना एक चाइनीज नाम दे रखा है, राइट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ग्लोबल एनवायरमेंटल समिट, देन मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से आप जरूर ध्यान रखना कि इन थीम के टॉपिक्स को आप बिल्कुल ना छोड़ो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट हाई रिलेवेंट टॉपिक्स फॉर योर फाइनल 10 days, तो मेक श्योर कि अभी फिर से हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया, इंडिया चाइना बॉर्डर डायलॉग जो अभी हुआ था, ठीक है। देन आपका COP30 ब्राजील क्लाइमेट फाइनेंस एंड अमेजॉन कंजर्वेशन, देन ग्लोबल AI गवर्नेंस एंड डीप फेक रेगुलेशन। इस साल की स्टार्टिंग में डीप फेक के अराउंड काफी ज्यादा न्यूज सुनने में आ रही थी, ठीक है। देन विमेन्स रिजर्वेशन एक्ट, ठीक है, लास्ट ईयर भी इस पे से क्वेश्चन आया था, अब इसके इंप्लीमेंटेशन फेज पे आ सकता है, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म लाइबिलिटी एंड सिंथेटिक कंटेंट लेबलिंग नॉर्म्स, इंपॉर्टेंट जॉनरा है। देन ब्रिक्स 2025, लास्ट ईयर भी ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था, देख सकते हो आप लोग क्लैट 2025 में जब कजान में हुई थी समिट, ठीक है। एंड एक्सपेंडेड मेंबरशिप। देन रेड सी डिसरप्शन, बिल्कुल राइजिंग ऑयल प्राइसेस का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, तो इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है, मेक श्योर कि आपने ये कर रखा हो। ग्लोबल ऑयल शिपिंग इंपैक्ट एंड इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रॉस बॉर्डर UPI एक्सपेंशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट हाई रिलेवेंट टॉपिक्स है फॉर जीके, मेक श्योर आपने कर रखे हो, ठीक है। देन talking about section B, that is legal reasoning, the second most important section, because for some it can be the first important section as well, but then GK I would say कि बहुत ज्यादा broad है। लीगल रीजनिंग में यू डोंट नीड टू मेमोराइज एनीथिंग, it's totally based upon application. So if your aptitude is good and you have been practicing it consistently, ये automatically आपका अच्छा होगा, ठीक है। तो if we talk about legal reasoning, so recurring passage types अभी देख लेते हैं हम लोग कि लीगल में जो पैसेजेस आते हैं, जैसे हमने कल एक एनालिसिस जब कर रहे थे तो देखा था कि 2021 पे काफी ज्यादा स्टैटिक के अराउंड ही आ रहे थे, जो डॉक्ट्राइनल स्टैटिक जो होते हैं लीगल के डॉक्ट्रीन्स और स्टैटिक पार्ट पे। 2022 में हमने देखा था धीरे से करंट का एलिमेंट डाला, फिर 2023 से काफी ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड आने लग गया था लीगल रीजनिंग। तो वो एनालिसिस पे हम लोग इसको समराइज करते हुए देखते हैं कि इस साल कहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अक्रॉस 5 years क्लैट लीगल रिपीट द सेम स्ट्रक्चर बिहेवियर। अब वो सेम स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहला है कोर डॉक्ट्रिन नेवर डिसअपियर्स। जो कोर डॉक्ट्रिन है ना स्टूडेंट्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप बात करोगे तो वॉइड, वॉइडेबल, ठीक है। आपका कंसेंट, टॉर्ट में आप बात करोगे तो वायलेंसी, नॉन फिट, इंजूरिया, डिफेमेशन। तो जो कोर डॉक्ट्रिन है ना लीगल के, वो कभी डिसअपियर नहीं होता। आप ये मत कभी सोचना कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से आएगा ही नहीं, अब तो सब लीगल करंट अफेयर्स आएगा, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिक्स है, कंसेंट, वॉइड, वॉइडेबल, टॉर्ट, आपका IPC BNS स्टाइल ऑफेंसेस, रिट्स, ठीक है, एंड फंडामेंटल राइट्स, फैमिली लॉ, मैरिज, डाइवोर्स, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आए हैं लास्ट ईयर्स में, ठीक है। देन मतलब सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं करो, प्रीवियस 5 years में। देन रिकर्स इन सम फॉर्म एवरी ईयर, ठीक है। फिर एक पैटर्न आपने देखा होगा, लास्ट ईयर भी जुवेनाइल पे एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, चाइल्ड पे हर साल आता है, ठीक है। वन चाइल्ड या फिर जेंडर या फिर फैमिली प्रोटेक्शन पैसेज एवरी ईयर, हर साल आया, ठीक है। देख लेना आप लोग प्रीवियस वीडियो में मेरी, उसका मैंने लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो, उसमें हमने बहुत डीपली एनालिसिस किया ये सारा, ठीक है। तो HMA डाइवोर्स का क्वेश्चन आया था 21 में, बाइगेमी डाइवोर्स का 2022 में, सेरोगेसी का, फैमिली थीम्स का 23-24 में आया है, ठीक है। वॉइड मैरिज एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2023, 24, 25 हर साल क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि एक इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इकोलॉजी पैसेज हर साल आता ही आता है, ठीक है। इन मोस्टली ईयर्स इट कम्स। सो इकोसेंट्रिज्म पे आया था 2022 में, देन इन्वायरमेंटल लॉ में आया था 2023 में, एंड क्लाइमेट जस्टिस पैसेज 2025 में, ठीक है। तो ये थीम्स है, मतलब आपको एक चाइल्ड, जेंडर, फैमिली प्रोटेक्शन पैसेज एक मिल सकता है। तो इसके लिए आपको जो भी हमारे पास जेंडर लॉज है, चाइल्ड लॉज हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उनका आपको बेसिक पता हो, ठीक है। देन वन इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, इकोलॉजी पैसेज मोस्टली हर साल आता है। देन एटलीस्ट वन टेक डेटा मीडिया लॉ पैसेज, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था कि डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट पे भी
क्वेश्चन आए हैं लास्ट 2 years में, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 टेक डेटा मीडिया लॉ पैसेज इन द लास्ट 3 years, तो डेटा प्रोटेक्शन एंड एग्जाम आईडी लॉज, ठीक है। देन आपका डीपीडीए प्लस ऑनलाइन डिफॉर्मेशन प्लस प्रेस बिल एंड देन डीपीडीए अगेन 2025 में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप इसको ना लाइटली ना देखना, लिटरली ये आपका मतलब आपका पूरा प्रिपरेशन बदल सकता है, आपका पूरा एग्जाम देने का ना व्यू बदल सकता है। तो मेक श्योर कि आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड देन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट एंड जेजे एक्ट बिकम सुपर रिपीटेड, सबसे ज्यादा ये आता है, ठीक है। तो पब्लिक एग्जाम जैसे आपने देखा था लास्ट ईयर भी एक पब्लिक एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आया था, प्लस एंड डीपीडीए प्लस जुवेनाइल जस्टिस अपीयर अक्रॉस 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 23, 24, 25 किसी ना किसी कैपेसिटी में क्वेश्चन यहां से फ्रेम जरूर हुआ है, ठीक है, पैसेज पूरा। देन क्वेश्चन स्टाइल पैटर्न जो है वो स्टेबल रहता है, ठीक है। पहले आपको वही रूल्स प्रिंसिपल्स जो है ये सब पैसेज के अंदर बेक्ड रहते हैं पहले से। देन 4-6 हाइपोथेटिकल पर पैसेज मिक्स्ड विद वन लाइनर्स क्वेश्चन मिलता है आपको। नो एक्सटर्नल नॉलेज, आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है उसकी, लेकिन अगर आपको पता होता है तो थोड़ा सा आप ना यहाँ पे टाइमली अटेम्प्ट कर लेते हो पेपर को, ठीक है। देन हाउ टू प्रिडिक्ट दिस ईयर्स पेपर, अब इस साल का अगर हमें प्रिडिक्ट करना है पेपर क्या आ सकता है, तो आप फ्रॉम दिस 5 year पैटर्न क्लैट ऑलमोस्ट ऑलवेज पिक्स 1 पैसेज फ्रॉम ईच बकेट। तो अब इंपॉर्टेंट बकेट जैसे हमने जीके करंट अफेयर्स में देखा था, इंपॉर्टेंट बकेट्स क्या है, लीगल में देख लेते हैं। सो इन लीगल द इंपॉर्टेंट बकेट्स आर फर्स्ट वही आपका स्टैटिक डॉक्ट्रिन बकेट, ठीक है, जिसमें आपका जो कोर एलएलबी का एरियाज है, जो आप कोर लॉ के सब्जेक्ट है, जो आप आगे अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे एनएलयू जाने के बाद, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, क्रिमिनल, जनरल प्रिंसिपल्स, इनमें से तो एक आना ही आना है। देन सेकेंडली चाइल्ड जेंडर वल्नरेबल ग्रुप्स बकेट, ठीक है, तो इसमें आपका जुवेनाइल जस्टिस, विमेन्स राइट्स, मैरिज, सक्सेशन, रिजर्वेशन एक्सेट्रा इस पे आ सकता है, ठीक है। देन थर्ड इज आपका इन्वायरमेंट प्लस फंडामेंटल राइट्स बकेट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें आपका क्लाइमेट के अराउंड देखना आएगा जरूर, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट के अराउंड लीगल में एक पैसेज तो फॉर श्योर होगा, ठीक है। क्लाइमेट, पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन्स, आर्टिकल 21, 48 है, 51(a)(g), राइट। देन फोर्थ इज आपका डिजिटल टेक डेटा मीडिया बकेट, ठीक है। तो इसमें आपका अगेन डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा अमेंडमेंट एक्ट, आईटी रूल्स, एआई, सोशल मीडिया लाइबिलिटी, डीप फेक्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जॉनरा। देन गवर्नेंस पे आपको आ सकता है, इस पे तो फॉर श्योर आएगा, गवर्नेंस पे तो फॉर श्योर आएगा, हर पिछले 3 साल से आ रहा है, ठीक है, 2-2 पैसेज भी इनफैक्ट आ जाते हैं। तो पब्लिक एग्जाम्स एक्ट, ठीक है, एक्सेस टू जस्टिस, रिजर्वेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टैट्यूट एंड रेगुलेशंस, राइट। देन मूविंग अहेड इज so for CLAT 2026 the high yield window is roughly from January to November 2025 with 2024's major structural changes, because last year 1 जुलाई को जब मेजर स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था हमारे क्रिमिनल लॉज में, उसका ये पूरा साल इंप्लीमेंटेशन फेज में था, तो इसलिए काफी पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन यहां से भी फ्रेम होगा, ठीक है। तो क्लैट विल ओनली चूज टॉपिक्स दैट कैन बी टर्न्ड इनटू 405 to 450 वर्ड प्रिंसिपल रिच पैसेज विद क्लियर रूल्स प्लस 4 to 6 आपसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस इस पे बेस्ड। देन क्लैट रिपीटेडली सेलेक्ट्स लीगल पैसेजेस दैट फॉल इनटू दीज क्लस्टर्स। तो सबसे ज्यादा जो पैसेजेस आते हैं लीगल में जिसमें इस साल पॉसिबिलिटी थी वो अभी हमने डिस्कस कर लिया था 5 बकेट्स, ठीक है, लेकिन ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, इनमें वो बकेट्स इंक्लूडेड ही हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट थीम्स है जिससे क्लैट में मोस्टली पैसेजेस आते हैं लीगल में। तो सबसे पहले आपका रिसेंटली ऑपरेशनलाइज्ड स्टैट्यूट्स जो है, ठीक है, BNSS एंड BSA। देन टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, राइट्स एक्सपेंशन, देन गवर्नेंस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी लॉज, इस पे आता है क्वेश्चन, बार बार आता है। देन इक्वालिटी, रिजर्वेशंस, वल्नरेबल ग्रुप्स पे, ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स मतलब कि विमेन, चाइल्ड, इनके अराउंड आता है क्वेश्चन। देन डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी, चाइल्ड राइट्स एंड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स एंड फैमिली ऑटोनॉमी, सरोगेसी, अडॉप्शन रेगुलेशंस, ठीक है। तो दिस इज द हाई यील्ड बकेट फॉर योर लीगल रीजनिंग फॉर क्लैट 2026, राइट। देन हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या होने चाहिए, तो अब फाइनली क्वेश्चन ये आता है कि सर टॉपिक्स बता दो लास्ट 10 डेज में क्या क्या करें। तो अगेन BNS, BNSS, BSA, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इफेक्ट्स देख लो इसके आप, आईटी रूल्स 2025, सिंथेटिक कंटेंट एंड इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, ठीक है, इस साल जो अमेंडमेंट हुआ आईटी रूल्स में मेक श्योर आप वो कवर करके जाना। देन क्लाइमेट चेंज एज एन आर्टिकल 21 राइट,
ठीक है। अच्छा, आजकल ये आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन के अराउंड बहुत पैसेजेस आने लगे हैं, तो इस साल मुझे काफी ज्यादा हाई चांसेस लग रहा है क्लाइमेट चेंज का अराउंड हो सकता है। मेक श्योर आप करके जाना, ठीक है। देन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 पिछले साल भी आया था, उससे भी पिछले साल आया था, ठीक है। देन दविंदर सिंह जजमेंट सब क्लासिफिकेशन विद SC/ST एक्ट, ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये क्लैट PG के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की राइट्स एंड एग्जम्पशन, उस पर क्या क्या है, ठीक है। बार बार आप देख रहे हो DPDA रिपीट कर रहा हूं मैं, तो DPDA इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ट्रांसफर टू एडल्ट सिस्टम एंड प्राइवेसी, एंड लास्टली surrogacy, adoption and ART regulatory issues 2024-25. So these 8 themes align directly with CLAT's doctrinal plus policy driven passages. जो आजकल एक CLAT का पैटर्न बन गया है ना, कि हमारा जो डॉक्ट्राइनल पार्ट है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आपका जो ट्रेडिशनल लॉज है, उसमें थोड़ा सा ना पॉलिसी ड्रिवन पैसेजेस विद लीगल करंट अफेयर्स मिक्सचर का, तो उस आप ये सारे कर लोगे ना, मैं बता रहा हूं आपको लीगल रीजनिंग पूरा डन है क्लैट में, ठीक है। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। देन टॉकिंग अबाउट सेक्शन सी, तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग का हम लोग साथ में कवर करते हैं, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, सो कंसेप्चुअल जो डोमेन होता है ना, दोनों का ऑलमोस्ट मतलब हर साल रिपीट ही होता है क्लैट में, इंग्लिश में भी रिपीट होता है, CR में भी रिपीट होता है। तो क्लैट्स ह्यूमैनिटीज ओरिएंटेड पैसेजेस कंसिस्टेंटली रिवॉल्व अराउंड व्हाट, ठीक है। मोस्टली जो पैसेजेस होते हैं ना इंग्लिश में, वो कौन से जॉनरास के अराउंड होते हैं। अच्छा, अगेन लेट मी जस्ट रिपीट द सेम थिंग कि इफ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पे हमने ईयर बाय ईयर सारे सेक्शंस का ब्रेकडाउन किया है कि इंग्लिश में 2021 में इन जॉनरास से पैसेज आ रहे थे, 2022 में इस जॉनरास से आ रहे थे, 23 में इस जॉनरास से आ रहे थे, ये जॉनरास रिपीट हो रहे हैं, तो वो प्रॉपर एनालिसिस हमने कर रखा है, मेक श्योर आप वो भी देख लेना। यहाँ पे हम लोग बस सिर्फ जो हाई यील्डेड प्रैक्टिस है, अब आपको ये कि सर मुझे इंग्लिश आरसी की प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रैक्टिस करने लग जाओ आरसी में, अगर करो प्रैक्टिस तो इन थीम्स के अराउंड करो, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट थीम इज एजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल रीजनिंग, देन डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, देन कॉग्निटिव पैटर्न्स एंड साइकोलॉजिकल बिहेवियर, देन फोर्थ इज टेक्नोलॉजी, ऑथेंटिसिटी एंड मिस इन्फॉर्मेशन। देख रहे हो आप सारे नॉन फिक्शनल सही है, ऐसा नहीं है कि आपसे वहां पे फिक्शनल आर्टिकल्स पूछते हो। 12th की आरसीज नहीं है क्लैट की आरसीज, जीमैट लेवल की आरसीज होती है, ठीक है। Then culture, identity and narrative form, then ethics in social behavior, public sphere and speed, and lastly social norms, ये बहुत important है, most important is this one, ठीक है। social norms and collective choices, right? So these themes form the backbone of CLAT English as well as logical reasoning over the last 5 years. Then final 10 days आपका जो फोकस है वो क्या होना चाहिए, कौन सी स्किल्स बढ़ाने पे होना चाहिए। सो सबसे पहले आपको पता है, मैं कल भी बताया था आपको कि इंग्लिश में आपसे वोकैबुलरी बेस्ड या ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 90% आपसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है, क्लैट की इंग्लिश में भी। मतलब आप समझ लो क्लैट इंग्लिश इज एक तरीके से CR ही है, वो भी क्रिटिकल रीजनिंग का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसी तरीके जैसे क्रिटिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग इंग्लिश में सेम उसी तरह से अप्रोच के साथ क्वेश्चन आते हैं, जैसे इन्फरेंस बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, देन ऑथर टोन, एटीट्यूड एंड पर्पस, then strengthening, weakening reasoning, ठीक है। This is not for only CR, this is for English and CR both. Then identifying assumptions, logical flaws and gap recognition, then parallel argument assessment, structure mapping of argument. So daily practice is required, at least 2 English plus 2 logical reasoning passages with strict time discipline आपको करना है last 10 days में, ठीक है, इन्हीं genres के around. Fine. Then moving towards the last section, that is क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। सो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में अगर आप 5 ईयर का स्ट्रक्चरल पैटर्न देखोगे ना, तो क्लैट QT वी हैव टोल्ड यू दिस मल्टीपल टाइम्स दैट इट इज नॉट मैथमेटिक्स, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड DI क्या होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मैथ्स नहीं होती है क्लैट में। जो क्वांट को आप मैथ्स समझते हो ना, भारी भरकम मैथ्स नहीं होती है, बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। रिकरिंग सेट टाइप्स अगर आप देखोगे तो परसेंटेज बेस्ड एक DI आता ही आता है, देन एक रेशियो प्रपोर्शन बेस्ड आता है, और एक फिर मिक्स्ड DI आता है, ठीक है, जिसमें एवरेजेस प्लस प्रपोर्शन रेशियो दोनों रहता है। देन मल्टी कॉलम कंपैरेटिव डेटा सेट्स रहते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉफिट, लॉस एलिमेंट्स कभी कभी आ जाता है, लाइट यूसेज रहता है। कोई अलजेब्रा नहीं आपसे पूछ रहा, ना कोई ज्योमेट्री पूछ रहा, ना कोई मेंसुरेशन के टॉपिक्स, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना प्रोबेबिलिटी, ये सब किसी फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है, और आज तक किसी ईयर में भी नहीं आया।
तो क्लैट में फिर आप पूछोगे सर क्यूटी के सेट्स कैसे होते हैं, मोस्टली कैसे होते हैं, और हमें लास्ट 10 डेज में अभी कैसे प्रैक्टिस करनी है। सो एवरी क्यूटी पैसेज हैज द सेम एनाटॉमी। क्या होती है, लॉन्ग सोशल इकोनॉमिक स्टोरी पे कोई पैसेज होता है, मतलब आपको 2 बच्चों का डेटा दे देंगे या फिर 2 सोसाइटीज का डेटा दे देंगे, ठीक है, उसके अराउंड ही रहता है। जैसे लिटरेसी डेटा, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इतना है, सेल्स ऑफ बुक्स, स्पोर्ट्स स्टैट्स, स्कीम आउटकम्स, मोस्टली इसी के अराउंड ही आपसे क्लैट में डेटा देके क्यूटी के सेट्स पूछते हैं, ठीक है। डेटा ब्लॉक किस तरीके, डेटा दिया किस फॉर्म में होता है, तो टेबल फॉर्म में भी होता है, ग्राफ फॉर्म में भी होता है, मिक्स चार्ट्स भी होता है, पाई वाई का मोस्टली यूज नहीं होता है, पाई चार्ट्स कम आते हैं, एंड मल्टी ईयर कंपेरेटिव नंबर्स, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं पर पैसेज, ठीक है। मोस्टली आपसे 3 ही क्वेश्चन, 3 पैसेज आ रहे हैं वैसे कर पिछले 3 साल से, तो नहीं पिछले मतलब 5 साल से। तो 70% परसेंटेजेस के अराउंड रहता है, 20% एवरेजेस, 20% रेशियोज एंड 10% एवरेजेस। कभी कभी समटाइम्स 1 ट्रैप क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है, एंड दिस इज बीइंग कंसिस्टेंट फ्रॉम 2021 टू 2025, राइट। देन मूविंग अहेड इज, अब प्रिडिक्शन मॉडल देख लेते हैं। तो यूजिंग द 5 ईयर साइकिल जो हमने कल डिटेल में किया था, दीज आर द ओनली 3 सेट टाइप्स क्लैट विल गिव इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सेट 1 आपसे कैसा हो सकता है, और जो कि एब्सोल्युटली गारंटीड आने को, ठीक है। सेट 1 विल बी परसेंटेज बेस्ड डीआई, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड डीआई हो सकता है। सेट 2 रेशियो बेस्ड, ठीक है, रेशियो बेस्ड टेबल ग्रुप कंपैरिजन। सेट 3 जैसा अभी हमने डिस्कस किया मिक्स्ड हो सकता है, मिक्स्ड डेटा, एवरेजेस प्लस परसेंटेज प्लस रेशियो, राइट। सो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्यूटी सेट थीम्स की अगर हम बात करें, जो फाइनल 5 की आपसे एग्जैक्टली क्यूटी के किस टाइप की थीम का सेट आपको देके पूछा जा सकता है। सो सबसे पहला वही जो सबसे कॉमन रहता है हर साल, लिटरेसी या कोई एजुकेशन का आपको डेटा दे दिया जाएगा, ठीक है, कि मान लो मेल फीमेल में इतनी लिटरेसी है, या फिर स्टेट वाइज इतनी लिटरेसी में ग्रोथ हो रहा है, तो ये यहाँ पे इस टाइप का आपको डेटा दे सकते हैं, ठीक है। या कैटेगरी कंपैरिजन या रूरल अर्बन ब्रेकडाउन, इस पे देकर आपसे डेटा देकर आपसे डीआई सेट दे सकते हैं। देन पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कितना ज्यादा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट रीजन्स, वहां पे एज ग्रुप्स, ठीक है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, परसेंटेज इंक्रीज इन माइग्रेंट्स, कितने माइग्रेंट्स आए हैं तो कितना परसेंटेज ऑफ इंक्रीज हुआ है माइग्रेंट्स की पॉपुलेशन में, डिक्रीज, एंड एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज, ठीक है, कितने सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने गवर्नमेंट में, कितने प्राइवेट जॉब में। देन स्कीम पब्लिक वेलफेयर बजट एलोकेशन डेटा, क्लैट लव्स गवर्नेंस लिंक डीआई सेट्स। अच्छा, क्लैट को क्या है ना, अक्रॉस द सेक्शंस कभी कभी ना थीम रिपीट करने में मजा आता है। वही थीम आप देखोगे जीके में भी है, वही थीम पे लॉजिकल रीजनिंग में भी आ गया, वही थीम पे लीगल में भी इवन पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्यूटी में भी आ जाता है। तो वो जो थीम्स को लिंक करना है वो क्लैट को, कंसोर्शियम को पसंद है, ठीक है। तो एग्जांपल्स हेल्थ स्पेंडिंग, स्कूल एनरोलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेशन, इसके अराउंड आपको डेटा दे करके फिर इस पे सेट बन सकता है, ठीक है। देन मूविंग अहेड इज नेक्स्ट इज सेल्स प्रोडक्शन मार्केट डेटा, ठीक है, कि इतना ज्यादा इतनी सेल्स हुई बुक्स की, इतनी इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कंपनी रेवेन्यू शेयर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैटेगरीज, ठीक है। एंड आप लोगों ने इसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी होगी ऑलरेडी। अब क्योंकि लास्ट के 10 डेज है तो बजाय इधर उधर की प्रैक्टिस के कोशिश करो क्यूटी में भी सेट्स करो, तो इन्हीं थीम्स के अराउंड करो, ठीक है। देन स्पोर्ट्स डेटा, टूर्नामेंट स्टैटिस्टिक्स, सो रन्स विकेट्स कितना, ये तो बहुत पसंद है, मतलब ये इजी भी रहते हैं। देन गोल्स, कितने पॉइंट हुए, कितने मेडल टैलीज आए, एंड ईयर वाइज परफॉर्मेंस, राइट। देन फाइनल 10 डेज का फोकस सर हमारा क्यूटी में कहां होना चाहिए, तो रिवाइज ओनली परसेंटेज चेंजेस, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज, सब ग्रुप रेशियोज, सक्सेसिव परसेंटेज इफेक्ट्स, वेटेड एवरेजेस, एंड ईयर वाइज कंपैरिजन टेबल, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस 3 फुल सेट्स डेली, ठीक है, कंसिस्टेंट एक्यूरेसी आपकी रहेगी इसमें। अब सर हमें इस सेक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम इस प्लान को सर हाउ टू एग्जीक्यूट दिस प्लान। सो स्टूडेंट्स just give 1 full mock test on daily basis, ठीक है, and make sure to analyze that properly, because until and unless you are not analyzing your mock, there is no point in giving that, because until and unless you are not analyzing your mock, you will never get to know ki what you are doing wrong and why you are doing wrong, why you are particularly wrong in that thing only. So a deep analysis is required. So if you are able to analyze 1 mock properly, just go for 1 mock on daily basis, ठीक है, 1 full mock test with detailed analysis. Detailed analysis is extremely important, student. I would say कि more than giving mock analysis is more important. Then 45-minute GK high yielded revision,
ठीक है, 45 मिनट्स का डेली, 45 मिनट लीगल प्रायोरिटी स्टैट्यूट्स प्लस प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड रिवीजन, देन 45 मिनट्स इंग्लिश एलआर पैसेज करो आप, दो सेट्स दोनों के लगा लो, देन 30-40 मिनट्स आप क्यूटी के डीआई सेट्स करो, डेली के 3 कर रहे हो सफिशिएंट है, एंड 30 से 45 मिनट में मॉक एनालिसिस करने की कोशिश करो। ठीक है, ज्यादा टाइम लग रहा है तो लो, बट 40 to 45 मिनट्स इज अ perfect time to analyze mocks, right? So just go for one mock on daily basis. Now what you have to exclude, ठीक है, exclusion to avoid in final 10 days क्या avoid करना है? न्यू जीके सोर्सेज और इवेंट्स आउटसाइड टॉप 8 क्लस्टर्स, जो मैंने आपको टॉप 8 क्लस्टर्स अभी दिखाए थे, टॉप 8 जो मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स दिखाए थे, उसके बाहर का आप अवॉइड करना, कुछ भी अब पढ़ने का कोई आपको जरूरत नहीं है। डिटेल्ड रीडिंग ऑफ न्यू लॉज करने की जरूरत नहीं है, हैवी एडिटोरियल रीडिंग करने की अब कोई जरूरत नहीं है, देन अलजेब्रा, ज्योमेट्री और अनयूज्ड मैथ्स, इसकी भी आपको कोई नीड नहीं है, एंड टेलीग्राम पीडीएफ बियॉन्ड स्ट्रक्चर्ड नोट्स, ठीक है, जो टेलीग्राम में हाँ मुझे भी दे दो, ये पीडीएफ मुझे भी दे दो, हाँ आपको भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो जो पीडीएफ घुमा करती है ना फ्री की टेलीग्राम में, अवॉइड करो, हो सके तो मिल रही है तो बियॉन्ड जो स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपने खुद अपने थ्रू आउट द ईयर बनाए उसके उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसे मत दो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो स्टूडेंट्स, and I hope that you have got a proper roadmap, a detailed roadmap, which was required for you as well, because there I can totally feel that at this point of time when exam is just 10 days away, there is a lot of confusion in mind, like what exactly I can do, how can I push my score, and there is a lot of anxiety as well. But make sure to watch this video. It will release a burden from your shoulders and will give you a proper roadmap. Like now you must be knowing at least what you have to do, how you have to do, and what exactly and how much you have to study, right? So with this students, let's end our today's session, and all the very best to you, and I hope that you guys are doing really good. And if you have any doubt, any confusion, any topic you want to revise, just let me know in the comment section and I will make that video for you as well. Till then, all the very best. Bye. Take care.